little actually we were hoping that we'll go online offline this week, but as you see, we couldn't. So this is just a little chat that we want to have regarding the lab. We can learn a little bit of what is to come during our labs. Basically, all this lab is about microcontrollers. What is a microcontroller? As I said in the class, a microcontroller has all the components built in. A CPU is part of the microcontroller, and plus the memory, plus ROM, RAM. It has both ROM and RAM. Remember, no processor can work without ROM. ROM के बगैर नहीं चल सकता कोई भी processor. Anybody can explain why? कोई processor. इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वहां स्टोर होती हैं, तो रैम में भी स्टोर होती हैं. आपकी एप्लीकेशन तो रैम में स्टोर होती है. जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो रैम में स्टोर होती है. तो जब आप कोड अपलोड करते हैं जो चेंज वो सिर्फ रीड करने के लिए वहां स्टोर होती है. आशिर क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोल रहे. कोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो इनिशियल बूट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हाँ जी, वेरी गुड. इनिशियल बूट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, एनीबॉडी एल्स? अशर की आवाज कम आई है, लेकिन ठीक है. वेरी गुड अशर. इनिशियल बूट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एनीबॉडी एल्स? सर जी सवाल क्या था? सवाल ये था हमदा के नो प्रोसेसर कैन वर्क विदाउट रोम, रीड ओनली मेमोरी. व्हाई? सर जब कंप्यूटर बूटअप होगा तो फिर वो जो ओएस का सारा है जहाँ से वो लोड करता है वो सबको कुछ कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, बना तो वो एक्सेस ही नहीं होगा, तो वो लोड ही बूट ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए चाहिए होता है. वेरी गुड. सही है. So in case of microcontroller, there is no OS. There is no OS, operating system, in case of a microcontroller. For a small little application, there are microcontrollers where you can also download tiny OS, small OS, and later on also actually we will talk about real-time operating system in the course, and we'll also install some very small real-time operating system in our processor. But mostly it's just a single application code. So the ROM is needed because processor needs to start from a known state. So when processor is reset, its instruction pointer that needs to get the instruction, very first instruction from the memory, the instruction pointer. इसको program counter भी हमने कहा था, शायद याद होगा. So that is always reset to 0, 0, 0. And at that location, देखिए बिल्कुल बॉटम लाइन पे एक बात हो रही है. बाकी हाई लेवल की बातें होती हैं कि ओएस ने ये करना है और उसको ये चाहिए और इसको, लेकिन ये कि अंदर बिल्कुल इवन वेरी स्मॉल ओएस जिसमें है नहीं भी है, कुछ भी है, BIOS भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, even then we need a ROM, because when processor start, its program counter is reset to 0, 0. At that 0, 0, 0 location there cannot be a RAM,
because the RAM will not be initialized by that time. It has to have some very small code. You can say that in a big processor that could be a boot up code that jumps to BIOS, but in very small every processor starts from a known location when it is booted. It's just called the reset state. So when it is booted, it needs to have a location where there is no RAM. Must be a ROM. So memory must include RAM and ROM. And that ROM is built in. Plus, we have peripheral devices and so on. We have most important devices, general purpose IO port, GPIO ports. So when you so what is a port? What is the concept of a port? What is a port? So we talked about this in the last lecture. What is a port? In general, as I said in probably one lecture also, that processor is has an address bus, a data bus, so mostly processor is communicating through this with the RAM memory. Memory has a part of the memory space is ROM, part of the memory space is RAM. Amount of ROM is always higher than RAM. That I think I have already explained. कोई बता सकते हैं why ROM is always more than the size of ROM is higher than RAM? बताया था मैंने. भूल गए? मानूर, हमजा, हाँ जी. Why is the size of ROM in embedded processor is greater than RAM? ये बड़ा फर्क है एक हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, उसमें हम वैसे तो उसको पूरे कंप्यूटर को सीपीयू कह देते हैं, बट दैट इज बेसिकली हॉल रोड टर्म. हॉल रोड की जुबान में इसको सीपीयू कहते हैं, हमें इसे कंप्यूटर कहना चाहिए. सीपीयू इज द ओनली माइक्रो प्रोसेसर, वेरी स्मॉल वन, इंटेल लाइक कोर i7 और समथिंग लाइक दैट. दैट इज एक्चुअली द सीपीयू. लेकिन चलें जो हॉल रोड में सर रैम के अंदर वेरिएबल स्टोर होते हैं, आपने शायद ये कहा था पहले. हाँ जी, रैम में वेरिएबल स्टोर होते हैं और रॉम में आपका कोड स्टोर होता है. और वेरिएबल आर यू डिक्लेयर इन द बिगिनिंग अ वेरी फ्यू. ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई रैम साइज इज वेरी स्मॉल. Right, so this is the basic link of the processor with the memory. This bus is bidirectional, so processor can read from the memory. So by making this high, this pointer means the data should travel from the memory to the processor, and by making this low, data is actually
traveled from the processor register to the memory. Internally processor सर ये has मेमोरी बात कर रहे हो? क्या ये जो मेमोरी मेमोरी आपने हमने लिखा है राइट साइड पे, ये फ्लैश है मतलब माइक्रो कंट्रोलर में? दोनों ही है, दोनों ही। अच्छा, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, रोम जो है उसमें इनिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं जो चेंज नहीं हो सकता, और रीप्रोग्रामेबल पार्ट फ्लैश है। नहीं नहीं नहीं, रोम इज फ्लैश रोम, क्योंकि कोड तो अच्छा आपने हर माइक्रो कंट्रोलर में कोड आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, उसको निकालते हैं आप, उसको प्रोग्रामर में डालते हैं, उसको फ्लैश करते हैं, उसमें नया प्रोग्रामर से कोड डालते हैं, तो रोम इज फ्लैश रोम। वैसे बेसिकली अच्छा उसको आप अच्छा, जब एक ठीक है। दफा प्रोग्राम कर देते हैं ना, फिर आप उसको उतार भी दें, पावर भी निकाल दें, वो प्रोग्राम उसमें ही रहता है। जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी भी निकाल दें तो रोम में उसका कोड वैसे का वैसे ही रहता है। तो RAM is where so part of this is RAM, part of this is ROM है। प्रोसेसर को नहीं पता होता कि मैं रोम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ या रैम से कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा हूँ। उसके लिए तो बस ये एक मेमोरी है, उसने एक एड्रेस जनरेट करना होता है, एक डाटा आना होता है। ये प्रोग्रामर को पता होता है कि ये एड्रेस लोकेशन जो है ये रैम में एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे वेरिएबल उठाना है। चलो इसको जरा थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो रैम ज्यादा बड़ी होती है, तो यहाँ से मैंने वेरिएबल उठाना है। So this is all processor does all its life. It is all the time communicating with the. Uh, uh, it is thinking that I'm speaking to a memory. It generates a pointer, writes the data, or reads the data. In general, processor is reading data 90% of the time and writing data 10% of the time. बड़े प्रोसेसर में, तो माइक्रो कंट्रोलर में शायद इससे भी कम हो। तो रीडिंग इज डन मच मच मोर देन राइटिंग। आपकी तरह नहीं है कि आप बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम है, इसमें ऐसे नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सुनते ज्यादा है और बोलते कम, तो दे रीड लॉट मोर देन व्हाट दे राइट। So that's basically this is all processor does all its life. In a big processor, some part of RAM could be graphics memory. So anything that is written to the graphics memory appears on the screen. कोई image write करेगा graphics memory में तो screen पे image आ जाता है, and so on. So otherwise processor को नहीं पता कि उसको क्या पता कि मैं image write करने जा रहा हूँ, वो तो एक data write करता है graphics memory में, और as a result एक image appear हो जाता है screen के ऊपर. So this is all it does all of life. जो मर्जी सॉफ्टवेयर चल रही हो, एआई चल रही हो, न्यूरल नेट चल रहे हो, कुछ भी हो, ये यही करता है। बट इफ इट इज ओनली डूइंग दिस ऑल द टाइम, इट्स नो गुड फॉर ह्यूमंस। हमारे लिए कोई इसका फायदा इतना नजर नहीं आता। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ड्राइव से रीड किया, राइट कर दिया। सो वी नीड टू हैव सम वे ऑफ सीइंग व्हाट इट इज डूइंग। एक तो जैसे मैंने बताया, यू हैव अ ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी, so anything you write it displays on the memory, but when you are communicating with outside world, you need ports. So what is a port? Let me explain to you what is would be an ports have two types: input port and output port. So let me explain to you what would be an output port. That in this memory area, uh, the designer of the microcontroller or any processor would have some space, very small space in ROM, that is called port area, या IO space कह सकते हैं memory की. So for that, what they do is they take this address bus
and design a big state catcher. So for a certain address that lies in this area of the memory, these are all different addresses. Some pointers belong to ROM, some pointers belong to RAM, but some pointers may belong to this port addresses. So when a port address is generated, this state catcher activates. For example, if I have this address, मैं दूसरी क्लास में जो कहा था वही मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ कि if I have this address 0x30f, this is a 10-bit number. So let's say address is a 10-bit address bus. So this is a 10-bit number. 3 is 1100 and F 4 ones. ठीक है ना, ये मैंने सही बताया या गलत बताया? और नीचे लिख लूं यार, वो जरा इधर लिख लेता हूँ 11001111. So this is 30F. और इसमें चूंकि ये 10 बिट का है तो इसको हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर है आपको यहाँ पर दो खुफिया जीरो लगाने पड़ते हैं, तो ये बन जाता है 30F. इनविजिबल जीरोस लगाने पड़ते हैं, तो ये 30F बन जाता है 10 बिट का नंबर. तो दिस इज 0x30F. So whenever processor generates this address, this state catcher output will become 1. And addresses are changing like processor की जो स्पीड है मेगा हर्ट्ज है या जो भी है, उसके साथ ये एड्रेस हर वक्त नया नया एड्रेस जनरेट होता है, क्योंकि अक्सर प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से कुछ रीड कर रहा होता है या राइट कर रहा होता है. सो दिस एड्रेस कैन नॉट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग. It only comes and go. It comes and goes. Comes and goes. Like you are standing in the railway line, near a railway line, not on the railway line. Please don't do that. And you are standing near the railway line and the train passes right in front of you. So some kind of that. So this address comes and goes. So you use this data bus. Eight-bit data bus, more in for an 8-bit microcontroller. This will be an 8-bit. We have an 8-bit microcontroller in the lab, so this will be an 8-bit data bus. And here we will have a 8-bit register. Register 8-bit, and its output will be 8 outputs. And this will be a clock here. It will be a clock here. अब क्या होगा, तो बताएगा क्या होगा इसके साथ. सर जब भी कोई एड्रेस पास होगा तो जो डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा और आगे चला जाएगा जब क्लॉक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा. जी सर. So basically register becomes a single bit single location memory. मगर सर हमें तो जो डेटा है वो तो रैम या रोम में चाहिए, हम ये रजिस्टर क्यों लगा रहे हैं नीचे? अच्छा, ये रजिस्टर में इसीलिए, वरना रैम रोम में मैंने बताया कि सारा डाटा अगर रैम रोम में हो तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है. दिस विल बिकम, वही मैं जो कह रहा था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, प्रोसेसर रैम रोम से राइट कर रहा है, आप किसने उसको देखें क्या कर रहा है. दिस इज द वे विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ये वाली आउटपुट जो होती है ये प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की आउटपुट पे ये वाली पिनें अवेलेबल होती हैं. ये 8 की 8 पिनें जो हैं, दिस इज द आउटसाइड वर्ल्ड. This is why it is called a port, because it is a port or a window to the outside world.
फिर ये एड्रेस बस से क्यों स्टेट कैच कर रहा है? एड्रेस बस से स्टेट कैच कर रहा है। सर इसकी वजह क्या है? मतलब जब आप राइट या रीड कर रहे हो मेमोरी से, तो वो एक पर्टिकुलर सिर्फ एड्रेस के ऊपर सी आउट करेगा, मतलब सबके लिए थोड़ी करेगा। हाँ सही है ना। तो मैं जब ये राइट करूंगा ना, फर्ज करें मैं ये राइट करता हूं कि इस मेमोरी लोकेशन पे 003F राइट करो, मतलब फर्ज करें मैं उसमें राइट करता हूँ 33, 8 बिट का नंबर, तो क्या होगा? मैं मेमोरी में कहता हूं कि इस पॉइंटर पे वैल्यू कैसे, स्टार पॉइंटर इसका लिखते हैं, स्टार 0x30F3 में कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 0x33। यस सर। तो ये क्या हुआ? चलें उठा लेते हैं। तो यही होगा ना कि इस पॉइंटर एड्रेस पे ये वाली वैल्यू राइट करो सी में। हाँ जी सर, ऐसे ही होगा। तो जब ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, दिस इज एन एब्सोल्यूट डायरेक्ट, आई एम स्पेसिफाइंग द पॉइंटर। आपको मे बी आपको ऐसे सी ये करने ना दे, क्योंकि पॉइंटर्स आर वेरी कंट्रोल्ड। अगर ये आपके प्रोग्राम एरिया में आपको राइट है मेमोरी एक्सेस का तो करने देगा, वरना नहीं करने देगा। हर मेमोरी एक्सेस की राइट प्रोटेक्शन होती है। जो भी ऐप आप रन कर रहे हैं वो ऐसे ही जाके किसी ओएस के एरिया में राइट नहीं कर सकती। पॉइंटर आप रैंडम सा कोई दे दें और उसे कहीं इस मेमोरी लोकेशन पे राइट करो सर आप तो तो सर वेरिएबल नेम देते हो, पॉइंटर की लोकेशन तो वो खुद ही आपको बाद में करके देता है ना, कि खाली कौन सी जगह पड़ी है, उसने हाथ इस से केस वो। में इस केस में ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है। इस केस में चूंकि ये इसका मैं इस ये कैच स्टेट कैचर हमने खुद बनाया हुआ है, तो इसका एड्रेस फिक्स्ड है, इसका कोई इलाज नहीं। तो जब इस पर्टिकुलर, आप बेसिकली कर ये रहे हैं, जब इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर आप कोई भी वैल्यू ऐड करोगे, वो आपको राइट बाहर करूंगा, दिखा देगा नॉट कि, ऐड करूंगा, राइट करूंगा, सही लफ्ज सॉरी यूज कर। हाँ राइट सॉरी सर, करूंगा। जब आप हाँ राइट करेंगे तो वो हाँ आपको आउटपुट दिखा देगा कि आपने मेमोरी के अंदर क्या चीज स्टोर की, क्योंकि हम तो डायरेक्टली मेमोरी में जाकर देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है उसके हाँ अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये यहाँ जो पे हो सकता है, सॉरी, यहाँ पे हो सकता है इसके अगेंस्ट मेमोरी एग्जिस्ट ही ना करती हो, दिस इज एक्टिंग एज ए मेमोरी। अगर यहाँ पे है तो उसको शेडो कहेंगे, शेडो मेमोरी फॉर दिस, ये उसका शेडो है। अगर सिमिलर डाटा पड़ा हुआ है तो फिर उसको शैडो कहेंगे। हाँ अगर यहाँ पे भी जो डाटा है अगर यहाँ पे भी स्टोर हो जाता है, इसके अंदर भी स्टोर हो जाता है, बस इस मेमोरी लोकेशन पे मैंने 33 राइट किया है, अगर वो इसमें भी स्टोर हो जाता है तो हमें तो इससे इंटरेस्ट है ना, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी ठीक हो गया। तो ठीक है। इसको हम शेडो कहेंगे। अ, अ, इन सर ये पोर्ट आईओ का आपने कुछ बताया था हमें, अभी आपने बताना है इसके बारे में। पोर्ट का मतलब अब ये पोर्ट है, पोर्ट का मतलब, पोर्ट आईओ का मतलब है कि ये आउटपुट पोर्ट है। आई का मतलब इनपुट पोर्ट, ओ का मतलब आउटपुट पोर्ट। तो ठीक है ठीक है। ये आउटपुट पोर्ट है, मतलब यहाँ पे आउटपुट मैं पोर्ट जो है, भी वैल्यू ठीक है। यहाँ पे राइट करूंगा ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे आ जाएगी। और प्रोसेसर की पोर्ट से जो है ना उसकी पिनों पे अवेलेबल होती हैं। जैसे ये अच्छा अच्छा प्रोसेसर है, ठीक है। इसके अंदर 8 पोर्ट, 4 पोर्ट्स हैं 8 बिट की। इसके अंदर 4 पोर्ट्स हैं 8 बिट की। पोर्ट ए, पोर्ट बी, और इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पोर्ट्स ही हैं। सारा काम ही प्रोसेसर का, एम्बेडेड प्रोसेसर का पोर्ट्स पे डाटा राइट करना और रीड करना होता है। पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी, पोर्ट ई, तो इस तरह से इसके अंदर पोर्ट्स हैं 8। 40 पिन का आईसी है ये वाला, तो जाहिर है इसके अंदर काफी जगह है पोर्ट्स बनाने के लिए। ये पोर्ट्स ही होती है, ये सारी 8 बिट की पोर्ट्स हैं। तो जब मैं फर्ज करें पोर्ट ए का, पोर्ट ए है, इसका नाम तो मैंने पोर्ट ए रखा हुआ है, लेकिन असल में ये एड्रेस है। असेंबली लैंग्वेज में या बाइनरी में जब जाएं तो ये नाम का कोई मतलब नहीं होता, जो एक्चुअली दिस एड्रेस। तो जब मैं ये इस पोर्ट के ऊपर ये राइट करता हूं
030X, अगर मैं यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर 8 बिट की जो पोर्ट है 0, इसको मैं कहूंगा ये है एड्रेस, इसको कहते हैं आईओ एड्रेस 0x30F। ये वाली लाइन, हर लाइन का एक नाम बन जाता है। ये वाली लाइन इसलिए है कि जब ये यहाँ पे इनपुट आती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इस लाइन का नाम हम कहते हैं ये 0x3F है। तो ये 8 पोर्ट हैं, इनके अगर ऊपर मैं अगर एलईडीज लगा दूं, 330 ओम का रजिस्टर यूज करूं और यहाँ पर एक एलईडी लगा दूं, सॉरी, सारा पे लगा देता हूं। ये आपके पहले लैब में इस असल में यही आपने करना है। इसे मैं जरा ये देखें, ये इस तरह लगा देता हूँ। इसे 8 पोर्ट्स हैं, पोर्ट एक ही, सब पे ये लगा देता हूं। तो क्या होगा जब मैं ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, ये 0 बिट है, ये 1 2 अप टू 7, जब मैं ये इंस्ट्रक्शन दूंगा तो 33 इज 1 1 0 0 1 1 0 0। तो ये दोनों एलईडीज ऑन हो जाएंगे, दे ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों ऑन हो जाएंगे, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। तो आपको वो बेसिकली वो जो डाटा इस पोर्ट पे राइट हुआ है वो आपको राइट हुआ हुआ नजर आए। तो इसलिए इसको कहते हैं पोर्ट, बिकॉज इट्स अ विंडो फ्रॉम द प्रोसेसर टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज अ पोर्ट। जैसा वो एक सी पोर्ट होती है ना, जहाँ से आप एक मुल्क से डाटा दूसरे मुल्क जा रहा होता है, इस तरह ये भी एक पोर्ट है। इससे प्रोसेसर से डाटा किसी और आउटसाइड वर्ल्ड को जा रहा होता है। तो ऑल ऑफ दीज पोर्ट्स play very important role in microcontrollers, not only microcontrollers, even in the processor। सीपीयू में भी हर चीज को एक पोर्ट असाइन होती है, हर चीज को, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो आपका नेटवर्क कार्ड हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो आपकी यूएसबी हो, चाहे कोई चीज हो। नो वन कैन कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर विदाउट अ पोर्ट। प्रोसेसर को तो यही समझता है कि मैं मेमोरी से रीड राइट कर रहा हूँ, लेकिन वो मेमोरी एड्रेस अगर पैरेलल पोर्ट का है तो डाटा पैरेलल पोर्ट पे राइट हो जाता है। अगर वो मेमोरी एड्रेस सीरियल पोर्ट का है तो डाटा सीरियल पोर्ट पे राइट हो जाता है। तो प्रोसेसर तो ये समझा, हाँ हाँ बेवकूफ बन जाता है प्रोसेसर, वो समझा वो मैं मेमोरी में राइट करने लगा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये असल में ये वो एक जहाज में डाटा डाल रहा है, जो कि उस जहाज पे बैठ के डाटा दूसरी दुनिया को चला जाएगा। तो पोर्ट्स आर बेसिकली दैट्स हाउ दे आर। सो दिस इज वेरी, दिस कैन बी थॉट ऑफ एज एन आईओ डिवाइस, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। These LEDs are acting as a output device. So output input devices are to there to communicate with the humans or other computers। सर हाँ जी। जी सर, तो ये सिर्फ आउटपुट पोर्ट के लिए ही आपको ये सारा सेटअप बताने की जरूरत है ना, स्टेट कैचर और एक आगे रजिस्टर। इनपुट पोर्ट तो सिंपल एक डाटा बस नहीं हो जाएगी उसके लिए, या फिर उसके लिए भी कोई सर्किटरी चाहिए होती है आपको? उसके लिए भी सर्किटरी चाहिए, उसके लिए भी सर्किटरी चाहिए, राइट। तो अभी आउटपुट पोर्ट देख लेते हैं, फिर इनपुट पोर्ट भी देख लेंगे। तो ये आउटपुट पोर्ट है, इसमें डाटा राइट हो जाता है। इसके अंदर ये शैडो रजिस्टर है, इसमें डाटा अगर आप रीड करेंगे ना, तो चूंकि आउटपुट पोर्ट है तो डाटा यहाँ से तो कोई नहीं आ सकता, रजिस्टर से आप रीड नहीं कर सकते। तो वो इस जो शैडो रजिस्टर है उसमें जो डाटा स्टोर हुआ है वो आपको मिल जाता है। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको अगर भूल गए आप, ओए मैंने क्या इस पोर्ट पे डाटा भेजा था, तो आप इस पोर्ट एड्रेस से जब रीड करेंगे तो ये शैडो रजिस्टर जो है, शैडो मेमोरी लोकेशन जो है, जो इस पोर्ट के अगेंस्ट एग्जिस्ट करती है, वहां से डाटा आपको मिल जाता है। इस शैडो मेमोरी लोकेशन का भी नाम है इस प्रोसेसर में, उसको कहते हैं लैच। तो आप देखेंगे कि हम लैच जब भी रीड करना है किसी आउटपुट पोर्ट से तो हम लैच से रीड करते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि इसको थोड़ा टाइम कम है Excuse me, कि, सर। हाँ जी। सर जी एक चीज पूछनी थी, ये जो स्टेट कैचर है इसको हम लोग बताएंगे ना कि कौन से एड्रेस से वाला डेटा हमें चाहिए, तो फिर जब हम उसको वो बताएंगे तो जो वो वाला एड्रेस जा रहा होगा तो वहां से स्टेट कैच करके उसको पल्स देगा, वो वाला एड्रेस का डेटा आउटपुट कर देगा जो हाँ हाँ हमारी आउटपुट। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो
सर ये जो शेडो वाली मेमोरी, इसका क्या रोल है बीच में? यहाँ से मैं लाइक शेडो जो रजिस्टर नीचे। रजिस्टर, ये मैंने बताया था कि अगर मैंने फर्ज करें प्रोग्राम के शुरू में यहाँ पर 0x33 लोड किया, अब चल रहा है प्रोग्राम, मुझे भूल गया और मैं नहीं देखना चाहता कि मैंने क्या रीड किया था या क्या राइट किया था, तो मैं कहां से, कैसे मुझे पता लगेगा कि इस पोर्ट पे मैंने क्या राइट किया था? उसके लिए मैं इस ठीक पोर्ट है। से रीड करूंगा। मैं रीड करूंगा जी सर। किसी वेरिएबल x में, x इज इक्वल टू स्टार 0x30x। ये थोड़ा नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? तो जो उस एड्रेस के ऊपर डेटा पड़ा होगा वो आ जाएगा एक्स के वो अंदर। इससे तो नहीं ना आ सकता, क्योंकि तो रजिस्टर है, रजिस्टर से रीड नहीं कर सकते आप। नहीं सर, उसके आउटपुट वाली पोर्ट पे आएगा ना फिर। नहीं, ये रीड कर रही है यहां से डाटा इस एक्स में प्रोसेसर के अंदर जा रहा है, तो यहां से नहीं आ सकता ये डाटा, क्यों? रजिस्टर रजिस्टर की जो है डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, डी फ्लिप फ्लॉप्स के तो डी इनपुट्स होती हैं, वो तो आप इनपुट देते हैं, आउटपुट तो नहीं ना वहां से ले सकते। हम्म। तो उस वक्त चूंकि ठीक। ये रीड सिग्नल एक्टिवेट होता है, जी सर। और तो यही जो 33 मैंने यहाँ पे राइट किया था वो इस मेमोरी में भी राइट हो गया। जब मैंने राइट सिग्नल एक्टिवेट किया था तो यहाँ भी राइट हुआ, यहाँ भी राइट हुआ। जब मैंने बाद में रीड किया तो ये रीड सिग्नल जब एक्टिवेट हुआ तो शेडो रजिस्टर से डाटा मुझे मेमोरी से 33 मिल जाएगा। उस वक्त रजिस्टर जो है ना वो रीडेबल नहीं है। ठीक हो गया सर, बेहतरीन। मैं दो कापियां बनी हुई हैं, ये वाली कॉपी है, ये दो बंदे हैं, एक को मैं देता हूँ, ये तुमने बाहर ले जाना है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन साथ ही मैं दूसरे को भी दे देता हूँ। तो जब मुझे चाहिए तो मैं, इससे तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये वन वे टिकट है, यहाँ से डाटा बाहर ही जा सकता है। तो तुम्हें भी मैं दे रहा हूँ, तुम्हारी टू वे टिकट है, रैम इज टू वे टिकट, रैम इज सर बाई रैम में आप डायरेक्शनल। सर बैकअप के लिए इसको शेडो मेमोरी में भी रख देते हैं ताकि हाँ जी, अगर कभी बैकअप के दोबारा लिए एक्सेस जस्ट अ करना। बैकअप, हाँ जी, वेरी गुड। तो इज जस्ट अ बैकअप। तो दिस इज द concept ऑफ अ पोर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक इसमें बड़ा रोल आ जाता है, वो है हैश डिफाइन का। हैश डिफाइन, व्हाट इज हैश डिफाइन इन सी? सर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हाँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो अगर मैं इसमें लिख देता हूं हैश डिफाइंड पोर्ट ए 0x308, अब क्या होगा? जो भी आप पोर्ट ए पे इसको लिखोगे वो असेंबली हो जाएगा। सर आपके कोड में जहां जहां पोर्ट ए लिखा होगा वहां पे ये रिप्लेस हो जाएगा कंपाइल से हाँ, पहले। वेरी गुड यार, आप लोग तो बड़े लायक हैं, बहुत माशाल्लाह लायक बच्चे हैं, शाबाश शाबाश, इनके लिए ढेर सारी तालियां। वेरी गुड। तो जी सर, बेसिकली ये ये कट मुजफ्फर पेस्ट। के लिए तालियां। हाँ जी, जी सर, ये सारे मुजफ्फर लायक है सर, इनके लिए तालियां। हाँ, सबके लिए तालियां। तो बेसिकली ये कट पेस्ट सीन है। तो अब जब मैं कहूंगा ना पोर्ट ए इज इक्वल टू स्टार, पोर्ट ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0x33, तो ये बेसिकली इस मेमोरी लोकेशन पे डाटा राइट है। तो ये वाली, ये जो है ना, अब कल अगर ये प्रोसेसर में चेंज कर लेता हूं, मैं पिक पिक की बेशुमार वेरिएशन है, पेरिफेरल इंटरकनेक्ट क्या होता है, पिक से बनता है, भूल गया मुझे। So PIC has many. This is PIC. This is the processor, as you can see here, 40-bit processor. Counting starts from here 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 20, 21, 22, 23. And if you notice here, पता नहीं आपसे पढ़ा जा रहा है कि नहीं, this is port A, A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
जरूरी नहीं है ये कंटिगुअस ही हो, ये कंटिगुअस है पोर्ट बी, ये इसलिए मुझे बड़ी पसंद है कि B01234567 पोर्ट बी कंटिगुअस, तो हर एक का एक एड्रेस है। बेसिकली इस प्रोसेसर के अंदर ही बड़े बड़े वो स्टेट कैचर लगे हुए हैं। ये पोर्ट सी है, C0 C1 C2 C3 C4, इस तरह पोर्ट डी है, D0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, so these are different ports। तो इसे और काम ही कोई नहीं है सिवाय पोर्ट से कम्युनिकेट करना, यही काम होता है माइक्रो कंट्रोलर का। और भी इसके डबल रोल्स भी होते हैं, इट्स क्वाइट काइंड ऑफ यू नो कमीलियन टाइप ऑफ प्रोसेसर। इसके पोर्ट्स जो है ना अपना रंग बदलते रहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे क्या रंग इसके क्या क्या रंग चढ़ते हैं इसको। पर सिंपलेस्ट रंग इसके आप इसको कहते हैं ये पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है या इनपुट पोर्ट है। सो दिस इज नाउ व्हेन आई चेंज अ प्रोसेसर टुमारो, तो जब मैं उसका प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वो उसके हैश डिफाइन खुद ब खुद उसकी लाइब्रेरी से वो ले लेते हैं, तो मुझे जाके पता लगाने की जरूरत नहीं कि इस पोर्ट का क्या एड्रेस है। तो ये हैश डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस केस में। तो ये सारी पोर्ट्स के हैश डिफाइन पहले ही पड़े होते हैं, तो आई डोंट हैव टू वरी कि इस पोर्ट का माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेस क्या है, क्योंकि ये इसकी जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो इसकी जो एक हेडर फाइल आएगी, लाइब्रेरी हेडर फाइल, उसके अंदर ये सारे डिफाइंड होंगे। हाँ, अगर मैंने देखना है कि कौन सी पोर्ट कौन से डेस्क पे है, तो वो मैं जाके उसके मैनुअल को देखता हूँ। प्रोसेसर का इतना मोटा सा मैनुअल है। सर तो आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होती है उसकी मेमोरी लिमिटेड होती है, इसी वजह से आप ये डिफरेंट ब्लॉक्स डिफाइन कर रहे हो एक पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 ब्लॉक्स हैं और आपने वही किसी तरह पूरे करने हैं, तो आपने हर पोर्ट को एक एक दिया हुआ है। क्या 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 10 क्या है लॉक्स? सर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास लाइक 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, एग्जांपल दे रहा था, तो आपने वो हर एक पोर्ट को दिए हुए, लाइक आपके पास जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है ज्यादा मेमोरी नहीं, इसी वजह से हम लोग ये डिफाइंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सीपीपी के अंदर करते हो तो तब तो आप ऐसे डिफाइन वगैरह कर सकते हो, लेकिन आप यूजुअली करते नहीं हो फॉर पॉइंटर्स। माइक्रो कंट्रोलर में आप करते हो यार, वो सीपीपी में ना करें, करना चाहिए। मैंने जितनी भी प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग देखी है आज तक, उसमें हर कंपनी जो है ना अपने हैश डिफाइंड लाइब्रेरीज यूज करती है, और उसके हिसाब से उन लोगों को पता होता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और हैश डिफाइंड की वजह से और स्पेशल डाटा टाइप्स की वजह से ही जो है ना वो कंपनियां काम कर रही होती हैं। तो उनके अपने अपने डाटा टाइप डेफिनेशन भी होती हैं, और स्ट्रक्चर उनके अपने इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन किए होते हैं, जो कि अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो स्ट्रक्चर सबको पता होता है कि ये क्या करें। तो इट्स नॉट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इट्स जस्ट अ सिंगल मेमोरी लोकेशन, एज यू कैन सी इट्स नॉट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक होगा सर। अब ये उसका देखें, ये सारा पिक माइक्रो कंट्रोलर का ये उसका मैनुअल है, इज नॉट 2 पेज डाटा शीट। इसमें को पता नहीं कितनी इसके अंदर रिसर्च, कितनी पीएचडी और क्या क्या चीजें इसके अंदर जा चुकी हैं, तब हम इस स्टेज पे आज पहुंचे हुए हैं कि हमारे पास ये 400 रुपए का में एक माइक्रो कंट्रोलर बाजार से मिल जाता है। अदरवाइज दिस इज समथिंग इसको सारे को समझने के लिए, पूरे इसको समझने के लिए 1 semester कोर्स नॉट इनफ, इट टेक्स years to understand full working, unless you are working in an industry where you get some accelerated catch up, you get very within a year you are up to speed with the uh, with the use of the microprocessor, but there are very very sophisticated uses of this microcontroller where we won't be able to go through them in this course, but there. Anyway, so as I was saying, these hash defines play a very important role. So Not ये only हैश डिफाइन
हैश डिफाइन जरा दोबारा बता देंगे या व्हाट इज इट एग्जैक्टली? हैश डिफाइन का वो क्या होता है बताएं जरा। ये कट पेस्ट करता है कि जहां भी ये लिखा हो इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं बस, जैसे आप वर्ड में नहीं ठीक करते है। रिप्लेस ऑल, हम्म, ऊपर आप लिखते हैं क्या रिप्लेस करना है और नीचे लिखते हैं किससे रिप्लेस करना है, ये वही चीज है रिप्लेस ऑल। ठीक है, थैंक यू। और एक इसका फायदा ये है कि ये डिफाइंस जो होते हैं ये प्रोसेसर की लाइब्रेरी में होते हैं, लाइब्रेरी फाइल में, हेडर फाइल में। तो अगर आप कल प्रोसेसर चेंज करें तो आपको पोर्ट ए का एड्रेस जो है ना पता लगाने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने कोड में। आपने जहां जहां भी पोर्ट ए लिखा हुआ है उस प्रोसेसर की पोर्ट ए जिस एड्रेस पे होगी वो उसकी ये हेडर फाइल में लिखा होगा, उस हिसाब से ये वाला एड्रेस चेंज हो जाए। ठीक है, या यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये पोर्ट का एड्रेस क्या है। अगर आपने देखना है तो आपको इस माइक्रो कंट्रोलर की एड्रेस बुक में जाएं, वहां पर यहाँ पर पोर्ट का एड्रेस तलाश करें, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, फिर आपके कोड में कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा पोर्ट ए कौन सी है पोर्ट बी कौन सी है। कोड फिर भी वही काम करेगा जो कि बगैर इस हैश डिफाइन के करता ठीक है सर, है। थैंक यू। एक और बड़ी बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी है माइक्रो कंट्रोलर्स की वो है बिट एड्रेसिंग। बिट एड्रेसिंग, by that bit addressing you can actually not only write a byte of data, you can write a bit of data. So if I say this is the most power thing about I would say for a microcontroller, so you can write a bit of data. So if I say port a dot b5, अब यहाँ पे मैं या 0 ही दे सकता हूँ या 1 दे सकता हूँ कि बिट 5 को या तो 0 करो या 1 करो। तो या ये इसको 0 क्या कर सकता कहा हूँ। कि आपने सर, इसको अभी कोई टर्म दिया है हाँ जी, सर? अभी आपने क्या बताया था, ये बिट बाय? बिट एड्रेसिंग, अच्छा ठीक है। every bit is addressable, से not कंपाइल this। करता है, मतलब आप पोर्ट ए स्पेस B5 लिखेंगे तो खुद ही बिट 5 सिलेक्ट कर ये ये कंपाइलर के डॉट अंदर। का मतलब ये है कि इसकी बिट 5, अच्छा अच्छा अच्छा, डॉट है, तो डॉट, इसकी ठीक है। हाँ इसकी इंस्ट्रक्शन में चला जाता है ये कि उसके कोड की इंस्ट्रक्शन में जाता है ये पूरा बाइट का फिर डाटा राइट नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक बिट राइट होती है उस उस बिट के ऊपर, और ना दूसरी बिट्स बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती इस तरह से, उनको कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके ट्रैफिक लाइट्स बनानी है, एक डायरेक्ट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके ट्रैफिक लाइट्स बनानी है तो मैं यहां पर अपने एक बिट 0 पे रेड एलईडी लगा देता हूं, बिट 1 पे ग्रीन एलईडी लगा देता हूं, और बिट 2 पे मैं येलो, ब्लू को येलो ही समझें आप, समझ लेंगे। ब्लू एलईडी। अब अगर मैं कहता हूं कि पोर्ट ये पोर्ट ए की सारी बिट्स हैं, पोर्ट ए, अब अगर मैं कहता हूं पोर्ट ए डॉट बिट 0 इज इक्वल टू 0, तो ये ब्लू एलईडी ऑफ हो जाएगा, रेड एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो व्हेन आई से पोर्ट ए डॉट बी 0 इज इक्वल टू 0, तो बाकी एलईडी ऑन ऑफ नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला एलईडी ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे कोई मोटर भी हो सकती है, यहाँ पे कोई डोर ओपनिंग हार्डवेयर भी लगी हो सकती है, यहाँ पे कोई फैन हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक बिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी बिट हैज अनबिलीवेबल पावर। इस एक बिट से हो सकता है किसी बहुत बड़े डैम का जो है वो स्पिलवे का
दरवाजा खुल रहा हो, स्पिलवे ओपन हो रही हो, इज जस्ट वन बिट, but it can do unbelievable so आपकी ट्रैफिक लाइट में अल्टीमेटली देयर इज जस्ट वन बिट that is turning on a traffic light and turning off a traffic light, कि रेड को ऑन करना है, ग्रीन को करना है या येलो को करना है. So this all these bits are like this. इसी तरह अगर मैं कहूंगा पोर्ट बी ए डॉट बी वन इक्वल टू वन, तो क्या होगा, क्या होगा? सर जो वो वन वाली बत्ती है वो ऑन हो जाएगी ना? ग्रीन वाली बत्ती ऑन हो जाएगी. जी सर. तो बी वन पे ग्रीन लगा हुआ ना, तो ग्रीन वाली बत्ती ऑन हो जाएगी. ये मैसेज क्या है ऐसे ही? हमजा रफी क्या कह रहे हो? तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, वो सारे ने अच्छी बात की थी। अच्छा, क्या बात की? मैंने तो देखा ही नहीं. सारब क्या कहा है आपने? सर वो उसने बताया था ना कि पोर्ट नंबर क्या करता है, तो आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था सर. हाँ, सही है, सही है, सही है. वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है. अच्छा बच्चा है सारिब, बहुत अच्छा बच्चा है. राइट, सो दिस इज इट. इसमें ये कि कल हो सकता है मैं रेड एलईडी किसी और पोर्ट पे या किसी और बिट पे लगा दूं, तो फिर मुझे मसला होगा ना कि मैं जाके सारे कोड में उस ये नंबर चेंज करूं रेड एलईडी को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए. तो मैं यहाँ भी ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि हैश डिफाइन रेड बी जीरो. अब यहाँ पे जब मैं कहूंगा पोर्ट ए डॉट रेड इक्वल टू जीरो, तो ये रेड किससे रिप्लेस हो जाएगा? सर ये B0 से रिप्लेस हो जाएगा। बी जीरो से रिप्लेस. ऊपर करना यार भाई. सर ये पोर्ट ए डॉट रेड का क्या मतलब है? रेड किससे रिप्लेस होगा? हैश रेड डिफाइन डॉट. ठीक है, ओके सही समझ आ गई. वो बी जीरो जीरो से. से. अब ये कि कल अगर मुझे कोड में बेशुमार जगह पे पोर्ट ए डॉट रेड आ सकता है, तो कल अगर मैं यानी हार्डवेयर चेंज हो जाती है, पोर्ट ए से किसी और बिट पे चली जाती है ये रेड वाली एलईडी, तो मुझे सारा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं. मैं जाके हैश डिफाइन में बी जीरो के बजाय बी फाइव लिख देता हूँ, तो ये मेरा रेड एलईडी जो है ना, अगर हार्डवेयर में बिट फाइव पे चला गया तो यहाँ से वो सारा खुद ही रिप्लेस हो जाता. तो हैश डिफाइन हैज अ वेरी वेरी पावरफुल, इसको जरूर आप यूज करें अपने कोड में, हैश डिफाइंस को. इसके बगैर आपको काम करना बहुत ज्यादा रीडेबिलिटी को सत्यानाश मार देता है, रीडेबिलिटी का कोड. ठीक है, तो इस तरह से देखें, ये भी हैश डिफाइन है, ये सॉफ्टवेयर में है, कंप्यूटर के प्रोजेक्ट में ये आपने अपना हैश डिफाइन कर लिया है. तो इस तरह से आपको बड़ा आसानी हो जाती है. मोटर है कोई लगी हुई है, मोटर फॉरवर्ड मोटर है या लेफ्ट टर्न मोटर है या राइट टर्न मोटर है, एक रोबोट पे, तो हर रोबोट की राइट टर्न मोटर भी एक पोर्ट पे लगी होगी, लेफ्ट टर्न ऑन ऑफ मोटर भी किसी एक जगह लगी होगी, फॉरवर्ड मोटर भी एक तरफ, बैक जाना है वो भी एक तरफ. तो सबको आप बिट्स की बजाय अगर ये हैश डिफाइन कर दें, तो कल अगर आप उसको चेंज करते हैं पोर्ट उसका, तो आपको आसानी हो जाएगी, सारा कोड नहीं आपको चेंज करना पड़ेगा. तो इस तरह से आप आराम से पोर्ट को चला सकते हैं. सही है. तो दिस इज बेसिकली एन आउटपुट पोर्ट. तो मेरा ख्याल मैं थक गया हूँ आज, काफी नहीं आज के लिए? काफी है सर जी, ठीक बहुत है है. सर। सही है ना? तो आप ये जरा समझें, इसको डाइजेस्ट करें, ट्राई टू डाइजेस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, एंड we will carry on with this. This is the basic job of microcontroller, and hence they are really really very powerful. Behind that there is so much code that is running at 10, 20, 30 megahertz, and in the meantime sometimes you're changing or reading something, writing something, and you can do things at a lightning speed with some brain in your port control. The brain
of your software is behind all of that. So is brain plus IO, that is what microcontroller is. Big digital logic में तो बहुत मुश्किल था, आपने काउंटर बना लिए ये वो बस, और अब वही उसको जरा सा भी चेंज करना है तो ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन वही काम आप माइक्रो कंट्रोलर से करते हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर 400 के भी आते हैं, 100 रुपए का भी आता है। छोटा माइक्रो कंट्रोलर इतना सा होगा, उसका ब्रेन तो वही होता है, ब्रेन छोटा नहीं हो सकता। तो जैसा इंसान है, बड़ा इंसान हो जैसे मैं हूँ, या छोटा इंसान हो जैसे हमारी लैब के ये ताहिर साहब है, तो ब्रेन तो ताहिर साहब का भी मेरे से ज्यादा ही है। तो ब्रेन सबका जो है ना, वो माइक्रो कंट्रोलर्स का जो है ना, वो सेम ही होता है। तो power of thinking is exactly same. Is only that they have fewer IO ports. एक बड़े काम ट्रैफिक लाइट बनानी एक पोर्ट काफी है। आप 4 पोर्ट वाला माइक्रो कंट्रोलर खरीदेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उसमें 3 पोर्ट वैसे ही पड़ी होंगी, तो आपका तो पैसा ही जाया जा रहा है। एक कई माइक्रो कंट्रोलर है वो सिर्फ 8 बिट के, उनमें 2 IO पोर्ट्स होती हैं, 2 पिने होती हैं सिर्फ जो IO कर सकती हैं। सिर्फ 4 पिने होंगी, 2 पिने होंगी, तो है ब्रेन उसके अंदर वही है, पूरी सॉफ्टवेयर उसके अंदर वैसे ही राइट होती है। सिर्फ 2 पिने हैं जो उसके आउटपुट पे हैं, जिनसे आप खेल सकते हैं। तो यू कैन सी द इमेजिन द पावर ऑफ दीज माइक्रो कंट्रोलर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह Officer. हाफिज, अल्लाह हाफिज।